फिर में क्या होगा? 11F, this one. Look, always to remember that rules of precedence. Okay. Anybody trying? Second repeat. This one. I marked this. Bolo, why are you taking so much time? So in bracket, P implies not Q and R. P implies not Q in bracket and R. and R. No. Look, you think about rules of precedence. पहले कौन सा ऑपरेशन होता है? उससे पहले नॉट होता था. हाँ, नॉट, तो नॉट के बाद एंड. Yes, and आएगा. Yes sir. एंड वाला पहले मींस फास्ट यू Yes sir. दैट. ये एक सिंगल पार्ट है. Grizzly bears have been seen in the area and berries are ripe along the trail. तो क्या होगा ये? P मतलब that second part after whenever it is what? P and ripe along the berries are ripe means what? R. So after whenever it is P and R, right? Yes sir. Now you see what is the form overall. Negation hiking is not safe on the trail means negation Q whenever P and R. This is the form negation Q whenever P and R. So what is the logical expression for it? Whenever Q when P, sorry, Q whenever P, it is P implies Q. Therefore, what it will be? P and R implies negation Q. Yes. Isn't it? Yes. Q whenever P होता है ना, P implies Q. तो यहाँ पे negation Q whenever P and R है, तो P and R implies negation Q. Got it or not? Yes sir. Yes sir. I can't hear. Yes sir. Just a minute. लैपटॉप का हालत बहुत खराब है, कभी स्पीकर काम नहीं करता है तो कभी माइक काम नहीं करता है. अभी तुम लोगों का वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है. Okay, now repeat actually. Hello sir. हाँ, now audible. तो जो आंसर होगा this one, right? So don't write this. Yes sir. Write it. Now see, 18, 19, 20, these are similar type of problems related to conditional or biconditional truth value. Okay, so some
what biconditional statements or conditional statements are given, you have to mention whether these are true or false. Look, usually if we don't know the truth values of the propositions which are used in the compound proposition, then we have to make the truth table. But if there are certain truth value for the propositions, then we can determine whether it is true or false exactly. मतलब अगर जो कंपाउंड प्रोपोजिशन में पी क्यू यूज हो रहा है वो पी क्यू का ट्रूथ वैल्यू एग्जैक्टली क्या है अगर मुझे पता है, देन आई कैन कंक्लूड whether overall the conditional or biconditional true or false. बट अगर पी क्यू जो प्रोपोजिशन है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता है, इन दैट केस वी हैव टू फॉर्म द ट्रूथ टेबल, राइट? मतलब दोज ऑल फोर पॉसिबल केसेस वी हैव टू कंसीडर. Here see, in problem number 18, 2 plus 2 equals to 4 if and only if 1 plus 1 is equal to 2. These are biconditional statement, right? If and only it means biconditional, na? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. what about the truth value of this first part and second part? True. ये ट्रू ना, 2 plus 2 4 ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब देयर इज ए डेफिनाइट ट्रूथ वैल्यू. एंड सेकेंड पार्ट का भी एक मतलब ट्रूथ वैल्यू है, एग्जैक्ट ट्रूथ वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट? नाउ यू थिंक इन बाइकंडीशनल टी केस क्या होता है? इफ पी इज ट्रू क्यू इज ट्रू देन व्हाट इज द आउटपुट? ट्रू. तो ए वाला हो गया ट्रू. नाउ व्हाट अबाउट सी? Actually, there is some ambiguity I was discussing with another section. What is the ambiguity I'm telling? Monkeys can fly. It is true or false? False. False. But some students are saying in a section, it may be true. Students can fly. They can jump from one tree to another tree. So, uh, flying. Monkeys are flying, you can say. Anuman. Okay, but usually fly means they can fly in the sky like a bird or insect. Okay, Yes. so that is false. तो देखो सी फास्ट जो है पी इट इज फॉल्स एंड क्यू इट इज ऑल्सो फॉल्स. सो फॉल्स फॉल्स केस इन बाई कंडीशनल क्या होता है? True. ट्रू होता है. ओके. Similar type of statements are there. 19 conditional actually. These are not biconditional. 19 conditional. So you tell me A 19A. What is the truth value? False. True. False या true? False. False, sir. False. False because it is TF. Yes, sir. देखो Yes, sir. that P is true and Q is false. False. तो TF केस में क्या होता है? True implies false is false. तो output will be false. It is conditional. Okay. Not biconditional. So similarly you can think about D. What is the truth value of D? 19D. False. True. Tell me. False. True. True है because it is what? False. It is also false. So false implies false. FF केस क्या होता है conditional में? True ना? Fine. तो बाकी सब similar and very easy. You can do by your own. Next, I'm coming different type of problem. Okay, write. You see, problem number 24. Write each of these statements in the form if P then Q in English. Okay.
तो मतलब ये अदर फॉर्म में है, that whenever necessary or sufficient or unless, there are various type of conditional form ना. तो from those type of forms you have to convert it to if then form. तो if then में convert करना है, clear? So 24A you think पहले क्या करोगे कि P क्या है Q क्या है वो डिफाइन करो, सो दैट इट इज P implies Q. ओके, मतलब जो दिया है उसको P implies Q फॉर्म में लिखो. आफ्टर दैट अगर P implies Q लिख लिए तो if P then Q में भी लिख सकते हो. तो यूजिंग नेसेसरी, राइट, यूजिंग नेसेसरी एक्चुअली the question is given. Now, I have mentioned already, if the conditional statement is P implies Q, then which one is necessary and which one is sufficient? P is sufficient, Q is necessary. Yes, P is sufficient condition ऐसे बोल सकते हैं, मतलब P is sufficient condition for Q and Q is necessary condition for P. तो in short, P is sufficient condition, Q is necessary condition. तो in that above sentence or above statement A, which one is necessary condition? मतलब यहाँ पे दो दो प्रोपोजिशन जुड़ा गया है, ठीक है, वास बॉस कर एंड गेट प्रोमोटेड, दो टाइप का प्रोपोजिशन जुड़ा हुआ है. ये दोनों में which one is necessary according to the meaning Promoted. of this statement? Promoted. Wash the boss car. Get promoted, right? It is the necessary condition. That means ये Q जो है इसको get promoted लेना है एंड P जो है इसको was the boss का लेना है, तभी जाके ये P implies Q हो जाएगा, राइट? तो मैं लिख दे रहा हूं 24A. तो here we should take P as what? Necessary condition. Necessary condition is get promoted, मतलब वो Q है, राइट? तो P दूसरा है was boss कर and Q get promoted. Fine. Therefore, what is the if then form? I got P, I got Q. So if P then Q, what I will write? If you was boss car, you will get promoted, right? You can write I also.
Are you getting? Am I audible or Yes, not? sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt here? No, sir. Similarly, you can do the others. ये कौन सा था 24? Okay, a sufficient condition whenever already whenever करके एक दो प्रॉब्लम कर लिए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, whenever necessary sufficient ये सब यूज करके ज्यादा क्वेश्चन आता है. सेम टाइप 25 इफ देन फॉर्म में लिखना है. अदर फॉर्म्स आर गिवन. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इफ देन फॉर्म ऑफ एज? 25 एज. First you think what is the unless form of P implies Q? Q unless not P. Q unless not P. तो P को क्या लेना है एंड Q को क्या लेना है, दैट यू थिंक. If water If is the too water is too cold, then Jan will not go swimming. No. if water is not too If the water is not then too cold, Jan will Jan will go swimming. Others? Yes, this one is correct. देखो ये है, if you want to write it in the form of P implies Q, then that first part it is P, sorry, it is Q, and that second part it is negation P na, then only it will be P implies Q. तो अभी P क्या हो गया फिर? The water is too cold, it is not P. Then what is P? The water is not too cold. तो ये P हो गया and Q, Jan will go swimming. Therefore in if then form, if P then Q. So if the water is not too cold, then Jan will go swimming. देखो एक चीज में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऑलवेज मतलब मीनिंग के हिसाब से मत चलो. ठीक है, मतलब ऐसे सोचोगे कि ये मीनिंगफुली ये तो सही नहीं है, ये मतलब तुमको कंफ्यूजन में लाने के लिए ये करते हैं. ऑलवेज मीनिंगफुली मत सोचो कि हाँ ये होने से ये होगा, बट यहाँ पे तो थोड़ा उल्टा लग रहा है. मतलब ऐसे सोचोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे. ऑलवेज मतलब टेक्निकली सोचना. ठीक है, जो फॉर्म बताया गया है उसके साथ कंपेयर करके लिखना, मीनिंग जो भी हो जाए. फाइन. Yes, sir. मतलब ये जो सेंटेंस है ना, गिवन सेंटेंस को घुमा के भी कोई दे सकता है. द वाटर इज टू कोल्ड अनलेस जैन विल गो स्विमिंग, ऐसे भी दे सकता है. देन दे विल आस्क व्हाट इज द इफ देन फॉर्म. तो अब तुम सोचोगे कि मतलब ये तो होना चाहिए कि इफ द वाटर इज नॉट टू कोल्ड देन जैन विल गो स्विमिंग, ये मीनिंगफुली यही करेक्ट है, बट उसका उल्टा है ना. बट अकॉर्डिंग टू द गिवन वन 25h, what is the form of if then? If, again I am repeating, you can write if the water is too cold, sorry, again I am repeating, if the water is not too cold, then
Jan will go swimming. ओके 26 भी सेम टाइप है, 27 भी, सभी सभी जितना भी मतलब सब पार्ट है सब ट्राई करना। कुछ हो सकता है कि वो आउट ऑफ द फॉर्म भी दिया है, थोड़ा सोच समझ के करना है। 27 सेम टाइप, 28 same type. Okay, now coming to converse inverse and contrapositive. मतलब कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव रिलेटेड भी वो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो जस्ट एक एक और एक एग्जांपल कर लेते हैं। व्हेन एवर करके तो एक एग्जांपल डिस्कस किए थे क्लास में, राइट? ये व्हेन एवर करके देखो यहाँ पे बोला नहीं गया है कि इफ देन में करो, मतलब इफ देन में लिख के करो, तो तुम व्हेनेवर फॉर्म में ही कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट एज आई टोल्ड, बेटर होगा कि फर्स्ट यू कन्वर्ट इट टू इफ देन फॉर्म, देन यू राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इन द सेम फॉर्म, मीन्स इफ देन फॉर्म। ओके, in okay, you tell me 29c, a positive integer is prime only if it has no divisors other than 1 and itself. तो ये कौन सा फॉर्म है? P only if Q. P only if Q or Q only P? Actually I also forgot. P only if Q. P only if Q या Q only if P? You please check those 14 forms. P only if Q. Sir. P only if Q ना, अगर सिर्फ if रहता, मतलब ओनली अगर नहीं रहता, ठीक है, अगर सिर्फ if रहता देन Q if P, राइट? Yes, sir. वन सेकेंड आई एम शोइंग, बट ओनली if अगर रहता है तो देखो P only if Q, बट अगर सिर्फ बीच में if रहता तो Q if P. So there is a difference. Okay, so a positive integer is a prime only if it has no divisor other than 1 and itself. तो यहाँ पे इसको अगर P implies Q में लिखना है तो what is P and what is Q? P only if Q मतलब P होगा a positive integer, you write P for that C part, P then colon, it will be a positive integer is a prime, okay, and Q, right, a positive integer has no divisors other than 1 and itself, okay. तो अभी if then में लिखना है if P then Q ना, तो क्या लिखेंगे? As I told, you can write If positive integer is a prime, then it has no it has divisors other than 1. yes, मतलब ऑर्डरिंग यहाँ पे चेंज करना नहीं पड़ रहा है। P implies Q में P का पोजीशन और Q का पोजीशन सेम टू सेम ही है। तो if then form is if a positive integer is a prime, then it has no divisors other than 1 and itself, fine. तो if then हो गया। now you state the converse, inverse and contrapositive. So what is the converse?
कॉन्वर्स, तो P इंप्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या है? Q इंप्लाइज P। मतलब पहले इफ के बाद, सो इफ a positive integer has no divisors other than 1 and itself, then it is a prime. Do I need to write? No, sir. देखो अगर बोलोगे तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो लिख ही देता हूँ। 29 C ना, a positive integer is a prime only it what? It has no divisor other than राइट। तो यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि नो दिया है मतलब इसको निगेशन लेके करना है। यू कैन कंसीडर इट एज ए प्रोपोजिशन, मतलब इसको निगेशन एज्यूम करके भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब नो को इंक्लूड करके ही प्रोपोजिशन ले लेना। तो यू कंसीडर P एज ए पॉजिटिव integer is a prime and Q a positive integer has no divisor other than 1 and itself. Then the symbolic form or logical expression or symbolic form of the given statement is P implies Q, right? Now I am writing if then form. If comma then inverted bracket, inverted comma के अंदर लिख देना if then form. So what it will be? If a positive integer is a prime, then it has no divisor other than 1 and itself, right? Yes, sir. So that is the if then form. Now you state converse, inverse, contrapositive. So star, first I am writing converse. So you write the symbolic form of converse. Q implies P. So you have to swap P and Q positions. So if a positive integer has no divisor other than, देखो यहाँ पे अगर if then फॉर्म में कर रहे हैं तो गलती से भी ओनली वाला टर्म और यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि ओनली if के जगह पे ही हम लोग if एंड then यूज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है
कि व्हेनेवर यूज करके स्टेटमेंट दिया था, वो इफ एंड देन में लिख रहे हैं कोई, तो उसमें व्हेनेवर रख दिया है, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट, फाइन। तो ये ओनली टर्म यहाँ पे नहीं आएगा कहीं पे भी। If a positive integer has no divisor other than 1 and itself, then it is a prime ना, हाँ, it is a prime। Fine। Next, inverse। इनवर्स का फॉर्म, सिंबलिक फॉर्म। सब सर डाउट है। यस। सर अभी जो आपने कन्वर्स वाला जो लिखाया है उसमें p जो है अभी इट इज अ प्राइम होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग हाँ जो आपने स्टेटमेंट लिखा कन्वर्स के लिए, हाँ, उसमें p इट इज अ प्राइम होना चाहिए फिर तो। देखो यहाँ पे p एंड q क्या है, मैं p स्टेटमेंट एंड q स्टेटमेंट जो है ये दोनों को फिक्स रख रहा हूं। p कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। p मींस ए पॉजिटिव इंटीजर इज ए प्राइम एंड q मींस ए पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये p q कभी चेंज नहीं होगा। p समझ रहे हो, मैं बोला कि पोजीशन चेंज हो सकता है। हाँ स्टेटमेंट तो सेम रहेगा ना एकदम जैसे दिया गया है। नहीं, स्टेटमेंट का मीनिंग सेम नहीं रहेगा। नो, कन्वर्स में जैसे p लिखा है, जैसे हमने p लिखा अपॉस्ट्रोफी इंटीजर ऑफ प्राइम, ठीक, तो इसका हाँ। स्टेटमेंट तो चेंज नहीं कर सकते ना बाद में, तो इसी को हमको बस स्वैप करना होगा। स्वैप मतलब ये नहीं कि q को इसको लेंगे p को ऐसे लेंगे, नो ये सर, वाला स्वैप नहीं बोल रहा हूँ। ये वाला नहीं सर, q implies p में जैसे। हाँ, q implies p में स्टेटमेंट क्या है, if q then p, तो मतलब क्या, if a positive integer has no divisor, वही तो है ना। देखो वो q implies p है, आर यू गेटिंग, कन्वर्स मींस q implies p, नो डाउट। सर इसका एक बार वो लिख दीजिए कन्वर्ट के लिए, p क्या होगा सर इसका कन्वर्ट का p? p ही रहेगा, जो प्रीवियस p है वही p है, p q चेंज नहीं हो रहा है। अरे मैं जो स्वैप टर्म यूज कर रहा हूं ना, वो स्वैपिंग ये वाला बोल रहा हूँ। p इनवर्स q था, ये स्वैप होके q इनवर्स p हो जा रहा है। तो बट वो तो समझा p जो प्रोपोजिशन है, q जो प्रोपोजिशन है वो सेम ही है, पोजीशन चेंज हो जा रहा है ये दोनों का। तो पहले जो प्रोपोजिशन यूज करते थे p के लिए वो था अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ प्राइम, लेकिन अब जो बन रहा है वो है इट इज अ प्राइम। नो नो नो, तो इट को मतलब पॉजिटिव इंटीजर हम लोग इट की तरह लेट कर ले रहे क्या? आई डोंट नो व्हाट इज द कंफ्यूजन। मतलब p एंड q ये ऑलवेज फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड के लिए p इंप्लाइज q लिखा गया है, ठीक है। मतलब गिवन जो स्टेटमेंट है दैट इज नथिंग बट p इंप्लाइज q। मतलब उसमें p को अगर ए पॉजिटिव इंटीजर इज ए प्राइम लेंगे एंड q को ए पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिविजर लेंगे, तो गिवन स्टेटमेंट इज नथिंग बट p इंप्लाइज q। अब इसका कॉन्वर्स मतलब क्या है, कॉन्वर्स मतलब जो है ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का जो मतलब हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन था वो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो Yes, sir. इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको, ये स्टेटमेंट तो सेम नहीं होगा, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। मैं कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव में लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट को इसका अगर कॉन्वर्स लिखना है तो एज आई टोल्ड कि ये दोनों मतलब दोनों प्रोपोजिशन स्वैप हो जाएगा, तो क्या होगा, ये इसमें दो प्रोपोजिशन है, ये एक प्रोपोजिशन है एंड ये एक प्रोपोजिशन है, ठीक है। ये दोनों स्वैप हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो समझ गए। सर हियर आप q implies p होना चाहिए ना, p implies q लिखे हैं बिकॉज ये लिखा है इफ इट हैज नो डिवीजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। नो नो, यहाँ पे ओनली इफ है, तो एक्चुअली ओनली इफ अगर यूज करते हैं तो वो फॉर्म है p ओनली इफ q। यस सर।
तो P ओनली इफ Q का मतलब ही है इफ P Yes, sir. देन Q. ओके, But like sir, ऐसे लग रहा है कि P only if Q means if Q then P. डोंट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग. आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, मीनिंग क्या है उसमें मत जाओ. तुम Yes, sir. देखो कि कंफ्यूजन हो फॉर्म्स जा रहा में है ना. क्या लिखा है. फॉर्म्स यहाँ पे मैंने Yes, इसलिए sir. फॉर्म्स दिखाया ना कि देखो, और एक बार दिखा देता हूँ. देखो, P अगर ओनली इफ करके किया गया है तो P ओनली इफ Q एंड if P then Q, both are same thing. Okay. Yes. मीनिंगफुली ऑलवेज मत सोचो. Like all this form are same, sir. हाँ जितना यहाँ लिखा है सब सेम ही फॉर्म है बेसिकली, मतलब हाँ, if P सब then सेम ही Q, है. P सब only ऑल if द Q. all the forms implies P, ये this symbol, this notation, P implies Q, ये सभी P implies Q Okay, का sir. फॉर्म है. Okay, sir. Okay. Now you come to that example again. तो मैं फॉर्म के साथ एक्चुअली कंपेयर करके P एंड Q क्या है वो डिफाइन कर रहा हूं. तो अगर फॉर्म के साथ लिखेंगे कंपेयर करके तो P Q जो लिखा गया है वो सही सही है ना. क्या कंफ्यूजन हो रहा है? बोलो. क्या कोई कुछ नहीं बोल रहे? और अभी डाउट ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अगर P implies Q जो वो गिवन फॉर्म में लिया गया है तो Q implies P क्या होगा? एज आई टोल्ड, मतलब वो पोजीशन स्वैप हो जाएगा. तो पहले Q आएगा देन P आएगा. तो वही लिखा गया है, पहले Q उसके बाद P. if a positive integer has no divisor, that is Q, then उसके बाद P. Okay, then you tell me what is the inverse statement? Positive integer has a divisor other than 1 in itself, then it is not a prime. If a positive integer is not a prime, then it has divisor other than 1 in itself. Yes. Yes, sir. If a positive Sir, integer is not a prime, then it It is has not the case, we लिख सकते हैं. Sir. huh? It is not the case that it has. Then it has no divisor की जगह पे it has a divisor बोल सकते हैं ना. सर पर आप बोले थे ना कि क्वेश्चन में जो नो दिया हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना. क्या बोल रहे हो? सर आप बोले थे ना कि इसका फैक्ट नहीं देखने के लिए और निगेशन है तो बस नॉट लगा देने के लिए, ऐसा. वॉइस मतलब क्लियरली नहीं आ रहा है. You can write in the chat box. Yes, sir. Yes, sir. So she is saying कि हमें वो सेंटेंस नहीं देखना है, बस हमें नॉट लगा देना है. हाँ मतलब
P एंड Q में दोनों में जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था Yes, sir. उसमें बोथ में नॉट लगा देना है. हाँ, वी ऑलरेडी हैव नो इन द क्वेश्चन, तो वो नो में तो नो अगेन मतलब नॉट लगाना है ना, तो वो नॉट लगाने से ये नो चला जाएगा ना. वो या नो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर कि इट इज नॉट द केस दैट हाँ इट हैज हाँ नो वो डिवीजन. भी लिख सकते हो. इट इज नॉट द केस करके लिखने से अच्छा नहीं कि छोटे मतलब जितना कॉम्पैक्ट वे में एंड सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हो वो लिखो. इट इज नॉट द केस करके भी चलेगा. फाइन. तो P का निगेशन होगा क्या? इट इज नॉट ए प्राइम. एंड Q का निगेशन होगा Yes, divisor. हाँ इट मतलब हैज सम Has a डिवीजर. divisor. Then contrapositive. Symbolic form is this. तो प्रीवियसली इनवर्स में जो लिखे थे उसको उसमें मतलब स्वैप कर देना है वो निगेशन P एंड निगेशन Q को. तो पहले लिखना है कि हैज ए डिवीजर एंड बाद में नॉट ए प्राइम. तो इफ ए पॉजिटिव इंटीजर as a divisor other than 1 and itself, then it is not a prime. Okay. तो देखो ये जो कॉन्फ्यूजन तुम्हारे मन में आ रहा है कुछ, मैं शुरू में ही बताया कि इसमें मीनिंग के साथ ऑलवेज समझने जाओगे तो कॉन्फ्यूजन में आ सकते हो. तो इसीलिए ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. कॉन्फ्यूजन में मतलब जो सही मीनिंग है वही लिख दोगे बट एग्जैक्टली वो नहीं है. ऑलवेज फॉर्म को देखना है एंड फॉर्म देख के अकॉर्डिंगली लिख देना है वो फॉर्म को इफ देन फॉर्म में. बाकी मीनिंग क्या है मतलब मैथमेटिकली वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो सोचना नहीं है. ओके, स्टिल हैविंग एनी डाउट? तो अगर फिर भी कुछ डाउट है तो बार बार पढ़ो और इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, ये जो फॉर्म्स है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स है वो फॉर्म्स को बार बार पढ़ो और ये कन्वर्शन को अच्छे से मतलब सीखो कि कोई भी फॉर्म दिया है उसको इफ देन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए. ठीक है, ये कन्वर्शन अच्छे से सीखना पड़ेगा. देन यू कैन राइट कन्वर्स इनवर्सन कॉन्ट्रापोजिटिव. हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? नहीं. ओके. Similarly 20 ये कौन सा प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम नंबर क्या था? 29 सी किया. तो 30 भी देखो सेम टाइप है ना. देखो 31 32 these are some means शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें से मतलब बनाया जा सकता है. बेसिकली these are शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. How many rows appear in a truth table for each of the compound propositions? So all of you know that for a certain compound proposition there have a truth table.
right? We can construct a truth table. So truth table में the rows contains what? Combination of truth values, right? So do you know anyone what is the relation between the number of rows and the number of propositional variables? मतलब कितना रो रहेगा वो, that means how many true false combinations are there for a compound proposition. 2 to the power number of different variables. Yes, the formula is 2 to the power number of variables. Previously देखो means exclusive or inclusive or conditional, then conjunction. In each and every case, I have shown for two variables, right? P and Q दोनों वेरिएबल लेके ट्रूथ टेबल दिखाया था. And in each of the table, how many rows are there? Means how many true false combinations are there? 4 है कि नहीं? देखो ये कॉन्जंक्शन में Yes, sir. 4 रो, 1 2 3 4 4 रो. ये वाला रो को कंसीडर मत करो, ये तो हेडिंग है. 4 रो है. सिमिलरली डिसजंक्शन में भी 4 है. देन कंडीशनल में भी एक्सक्लूसिव और में 4 है, कंडीशनल में भी 4 है, राइट? बाई कंडीशनल में भी 4 है. तो सभी में P एंड Q ये दोनों प्रोपोजिशन लेके किए थे. बट अगर उससे ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स, देन द रिलेशन इज मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 to the power number of propositional variables. I am writing in the Jamboard. Number of rows in truth table equals to 2 to the power number of propositional variables. ओके तो वो पी क्यू मतलब दो वेरिएबल था. वो जो केसेस मैंने दिखाए थे कॉन्जंक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव और कंडीशनल, हर एक केस में पी क्यू बस दो ही वेरिएबल था, राइट? तो number of propositional variables 2, so 2 to the power 2 means 4. Number of rows in the truth table is 4. Fine. तो you now tell me इसमें कितना रोज आएगा? 2. Because you identify the number of independent propositional variables. So number of independent propositional variable is 1, right? So 2 to the power 1 is the number of rows in the truth table. Means दो ही रो होगा. इसमें कितना है? B में 16 because 4 variables are there. So 2 to the power 4 number of rows in the truth table. Fine. That is the formula. You have to remember that. Fine. Any doubt in that formula? Simple formula है ये. No, sir. कितना इंडिपेंडेंट फॉर्मूला मतलब प्रोपोजिशनल वेरिएबल से वो देखना है. जैसे P एंड निगेशन P अगर दोनों ही यूज है तो ये दोनों तो रिलेटेड है. वेरिएबल एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. निगेशन P को भी और एक वेरिएबल मत ले लेना. फाइन. P निगेशन P करके अगर कोई कंपाउंड प्रोपोजिशन है तो उसमें वेरिएबल एक ही है. फाइन. That's all for today. In the next class, we will solve one or two more problems. Then we will go to the next section. Okay, sir. Okay, I will give all present. Thank you, sir. Thank you, sir.